found that there were about 4% people who were HIV infected. 4%. Yes. तो जब जेल अथॉरिटी को हमने बताया कि ये वाली है, तो इट्स टाइम दैट यू कुड कंसल्ट द डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स आल्सो फॉर दैट. तो उन्होंने कहा आप हमको उनके नाम दे दो and we will take care of them. Finding out the names of such people is not important. The important was that he told them the percentage, how they have to live. Because they did not want to take the blame on them. Homosexuality being considered illegal, I'm talking to you early 90s. So they didn't want to take a burden on themselves. Because how would otherwise people would get an infection? Because all kinds of exploitation was happening with the jail inmates. They were exploited by the jailers only, different level people. You see, sex indulgences of different kinds. So those kinds of things happen. So stigmatizing people with low risk behavior would get an infection from people with a high risk behavior. So how to treat them? तो उन्होंने फिर जेल इनमेट्स को भी उनको ट्रीट मतलब टेस्ट करवाया. We found that the percentage was quite high. But we did not, we would not reveal the names of people. So then they were not interested in us, but then they said we would do definitely rehabilitation. So a lot of educational programs and all went in, and how it has needs to be curtailed. So within that jail, those kinds of regulations were attempted, but since it was not a long-term study, we did a zero surveillance, means 1 point study, one-time study. We were not doing a follow-up study. So a little later it was found that there is a need to do more long-term studies also. Not just 1 point, how does it develop? I may be HIV infected now, but how will I get an infection in future? I never know. If I'm given an education at this stage and I'm followed up, then probably I can prevent getting myself from an infection. And continuous education, continuous support. So for the youth it became very important because Ministry of HRD, Youth Affairs Department, there was a big program called the University Top Kids Program, which was implemented something in more than 100 of universities all over India, where they were trying to create peer educators through the teachers of their school to develop a batch of peer educators from the university itself. So teachers would teach and then teach the students. They'll be leaders who would continue spreading, and during their extended education program, they would spread it out to the different communities about this. But then we found that the program was having its own difficulties. There were lots of glitches. When we talked to some of the students, they said teachers come, they don't even talk about biology. Well, so what would they talk about reproductive health? Teacher said, हमको ये वाला टॉपिक समझ नहीं आता. English teachers, English literature teachers or Hindi literature teachers, they said, we don't talk about romance and others with the students. वो हम skip कर देते हैं. Now this kind of reluctance on part of teachers, that means communication ही problem हो गई. तो आप education कहाँ पे दोगे? तो ये इस पूरी जर्नी में आखिर में आके एंथ्रोपोलॉजी का रोल कहाँ तो यहीं पे तो हमने पहले तो ये तो आखिर में आया. नहीं तो ये तो हम डायग्नोस्टिक कराना पहले हमने. They said कि there is some problem, कुछ क्या क्या हो रही है. तो we did the diagnosis कि the reluctance on part of teachers. तो जब हम लोग अपनी जब ये स्टडीज कर रहे थे, we presented our findings to the Department of Youth Affairs, where they had called the university teachers, the students and the students also. They said इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा. स्कूल में टीचर्स नहीं बात कर सकते, but we can always send them as teachers in some other school where the inhibition would be less. Right? तो इसका मतलब ये है कि सेक्स एजुकेशन कंपल्सरी होनी चाहिए. आपका मतलब सेक्स एजुकेशन तो एक्चुअली पेपर पे है, स्कूल में भी है और कॉलेज में भी है. बट हाउ डू टीचर्स डोंट टीच. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, जब अपनी बायोलॉजी क्लास में भी एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर एक टीचर नहीं बात कर सकते, तो सेक्स एजुकेशन वाले तो बिल्कुल ही नहीं बात कर सकते. इवन बायोलॉजी टीचर्स नहीं बात करते, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात ही नहीं कर सकते. तो फिर ये हुआ कि अगर हमने HIV के बारे में बात करनी है तो इनको हमको दूसरे कॉलेज में भेजना चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट से लिंक नहीं होंगे वो. जिनको रेगुलर पढ़ाते हैं, जैसे मैं अब अपनी क्लास में शायद मुझे इनहिबिशन है क्योंकि मैं उनको लॉन्ग टर्म
फॉलो अप कर रही हूँ, और वो मेरे साथ कोई मजाक करे या कुछ करे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो यही मैं जब कोई और स्कूल में जाकर बात करती हूँ तो उस समय वो लोग शायद मेरी बात सुने भी, वो मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं भी बगैर हिचक के उनको आंसर कर सकती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स सब तरह के टेढ़े मेढ़े बात करते थे। हम लोगों ने जब एजुकेशन अपना प्रोग्राम बनाए तो हमने ऐसे बनाए कि जब हम ओपन ग्रुप में बात करते थे, लोग कहते थे बॉयज को अलग करिए, गर्ल्स का अलग। हमने कहा बिल्कुल नहीं, बॉयज और गर्ल्स एक साथ ही समझेंगे, और उनके क्वेश्चन हम लोग एनोनिमाइज करते थे। सी द इम्पोर्टेंट थिंग इज स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। हम लोग स्लिप्स भेजते थे उनको, आप स्लिप्स लिखिए, अपना नाम नाम नहीं चाहिए हमको, अपनी एज लिख लीजिए, कौन सी क्लास के हैं आप, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, बिकॉज वी वांटेड टू डू आवर ओन एनालिसिस। आप अपने क्वेश्चंस लिखिए आपके, क्योंकि कुछ बॉयज के क्वेश्चन होंगे, कुछ गर्ल्स के क्वेश्चन होंगे, बट इसके रिस्पॉन्स जो है वो कॉमनली सबको मिलने चाहिए। क्योंकि खड़े होकर वो क्वेश्चन पूछने में हमने देखा, हमने कोशिश करी तो वो पूछना नहीं चाह रहे थे। तो उस तरह से ये हमने जब ये बैरियर्स दिखाए उनको कि किस तरह के बैरियर्स आ रहे हैं, कि क्वेश्चन पूछने में ही बैरियर्स आ रहे हैं, तो टीचर्स को समझ आया, और ऑर्गेनाइजर्स जो प्लानर्स थे उनको समझ आया कि हमको ये प्रोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी टॉकर प्रोग्राम्स के नोडल ऑफिसर्स होते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में उधर, तो उनके थ्रू ये प्रोग्राम में कुछ कुछ चेंजेस आए। जहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ये बोला कि दिस शुड स्टार्ट एट अ मच यंगर एज, नॉट फ्रॉम द कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी के लेवल पे नहीं कि ग्रेजुएशन में आ रहे, पर इवन यंगर एज, बिकॉज प्यूबर्टी एज में जब वो आना चाहिए, तो उस समय उन्होंने 11th एंड 12th क्लास में शुरू करा दिया था। अच्छा, टॉकेज प्रोग्राम वहां पे शुरू करा दिया था, बिकॉज इट इज डीलिंग विद सेक्सुअल बिहेवियर, टॉकिंग अबाउट इट ओपनली बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मेनी पीपल। अच्छा देखिए, कुछ कुछ इसमें बहुत एक मैं बात बताना चाहती हूँ, हमारी स्टडीज में हमने देखा कि विमेन आर प्रोटेक्टेड इन अ सोशल सिस्टम। गर्ल्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि आपको कॉलेज भेज रहे हैं पर आपको घर अपने 3 बजे तक आ जाना है, 4 बजे आ जाना है, 7 बजे आए तो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए उनके ऊपर तो काफी रेस्ट्रिक्शंस हो जाती है। यही चीज बॉयज के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। वो अगर 9 बजे भी आ रहा है, 10 बजे भी आ रहा है, 11 बजे भी आ रहा है, तो जो बहन स्कूल पढ़ रही है उसको अपनी क्लास, अपनी पढ़ाई को छोड़ के अपने भाई को सपोर्ट करना होता है कि भैया खाना भी दे, अपनी पढ़ाई नहीं। बॉय से कुछ पूछा नहीं जाता, बिकॉज इट इज राइट फॉर हिम टू डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू। अब इस बिहेवियर में उनको क्वेश्चन नहीं करा जाता। यू नो, दिस इज आर वेरी बेसिक, हमारे सेक्सुअलिटी नॉर्म्स, दिस इज वेयर एंथ्रोपोलॉजी कम्स, कि हमारे सेक्सुअलिटी नॉर्म्स किस तरह के हैं कि हम गर्ल्स को तो प्रोटेक्ट करते हैं, बॉयज को हम कहते हैं इट इज ओके फॉर देम, बिकॉज मैचो, being macho means don't ask questions, let them do what they want to. But when they get married, they pass on. If they have got an infection, they pass this infection to their wives. गवर्नमेंट में ये फैसिलिटीज हो गई हैं कि एंटीनेटल सेंटर्स जो हैं, एंटीनेटल केयर सेंटर्स, वहाँ पे जो प्रेग्नेंट वेमेन होती है उनकी HIV टेस्ट भी होता है, कंसेंट ली जाती है, टेस्ट होता है। अगर उसमें कोई HIV पॉजिटिव आ गई तो उस वुमन के लिए अकॉर्डिंगली उनको बोला जाता है कि 8th 9th मंथ में उनको AZT ट्रीटमेंट दिया जाता था, जिससे कि उससे वो प्रिवेंट कर सकते थे HIV इन्फेक्शन अपने बच्चे को पास ऑन करने के लिए। Well, it is not transmitted through the genes, but it is passed through the transmission. To admit the risk by the men could be passed on to the wife, but ये वो जो woman है, she is victimized. या तो उसको घर से निकाल देंगे on the different stages, but the man is protected. He may have got the protection, get an infection from any other source. So in that case, what does one do? So protecting the right of the women becomes a very important part. How do we take care of them? So men have to be educated also. So if they are told right from the very beginning how you can prevent an infection and the sources of infection that they have got, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, बिकॉज इट इज पास थ्रू द सेक्सुअल मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इज अ लॉट ऑफ स्टिग्मा इन्वॉल्व। अमेरिका में तो शुरू में जब ये HIV इन्फेक्शन आई थी तब तक 4-5 साल तक तो उनको पता चलता नहीं ना ये HIV है, ये क्या है, ये क्या है। सेक्सुअल एडिक्ट्स
4 लोगों में 4 एचेस, एक तो होमोसेक्सुअल में, एक हेटियन पॉपुलेशन में पाई जाती थी, एक जो हीरोइन एडिक्ट्स थे, और एक और एच सिकल सेल एनीमिया में, बिकॉज दे फ्रीक्वेंट ब्लड मैं ट्रांसफ्यूजन, उसी पे आने वाला था तो उनमें ये होता है। जी। तो अब सिकल सेल एनीमिया उसमें पर्सन का कोई नहीं है, इट इज नॉट रिलेटेड टू द इंडिविजुअल, तो उसमें कोई स्टिग्मा नहीं था। नहीं, पर पर सरकार ने जो प्रोग्राम पर शुरू किया है, आपको हाँ, क्या लगता तो है उसमें इम्पोर्टेंट, हाँ ये, हाँ आप वो कुछ पूछ रहे थे। इसकी क्या तो सक्सेस एक क्या इम्पोर्टेंट देखते चीज जो करी थी उन्होंने, दे वर एबल टू कंट्रोल लॉट ऑफ ब्लड बैंक्स। वहां पे उन्होंने HIV इन्फेक्शन, बिकॉज इट इज ट्रांसमिटेड टू द ब्लड, दिस वाज गवर्नमेंट कंट्रोल। तो जितने प्राइवेट ब्लड बैंक्स थे उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट चेक्स थे, कितने सारे ब्लड बैंक्स बंद भी हो गए थे इन सर्टेन एरियाज। तो काफी बुरी हालत हो गई थी हेल्थ के, बिकॉज उनको ब्लड नहीं मिल रहा था। बट एक दूसरी चीज ये थी कि दे वर एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम HIV, बिकॉज प्राइवेट में जो लोग देने आएंगे ब्लड, यूजुअली दे ऑल्सो हैव देयर ओन रिस्की बिहेवियर्स, क्योंकि उनको मनी चाहिए ना, तो उनके अपने रिस्क होंगे जो फ्रीक्वेंट, चाहे वो एल्कोहलिक्स हो या ड्रग एडिक्ट्स हो, तो दे वर पासिंग ऑन द इन्फेक्शन। तो वो कंट्रोल हुआ उसके ऊपर। तो इस तरह से, तो ये 4 जो थी, ये इंडिया में भी ये चीज थी। कितने आपने सुने होंगे अखबार में, शुरू में 90s में एक पूरा ऑटो ड्राइवर का फैमिली कमिट सुसाइड और समथिंग ऑफ दैट काइंड, वर वेरी फ्रीक्वेंट थिंग्स। पर विद दिस HIV स्टिग्मा जो था उसको काफी हद तक कंट्रोल करा गया। वाई कंट्रोल कैसे करा? राइट टाइम ऑफ एजुकेशन एट द राइट टाइम, एंड देन गिविंग अ सपोर्ट सिस्टम। अब इम्पोर्टेंट इसमें रिस्क, HIV के साथ अगर आपको STDs है तो HIV होने के चांसेस काफी हैं। तो गेटिंग योरसेल्फ चेक्ड विद STDs, improving knowledge of STDs, improving knowledge of how to prevent HIV and prevent pregnancy, because with youth people this is very important. So promoting condoms was serving 3 things. But somebody said कि कॉलेज में अगर हम ये करेंगे, that means we are making more promiscuous sex, but we are making more responsible sex. Sex is happening, let's accept it, but let's make it more safe. How to protect that? That is an important part. So this is where the anthropologists come in various ways. कि certain behaviors are there, we know it, but can we make it less risky by giving them the right information at the right time? And that is where when we collaborate with other people, with our medical team, with our lab team, to say when we find out. So then it becomes much easier for us to identify the problem and look for a solution of the problem. तो ये सिकलिंग के क्या लगता है ये जो सिकल सेल एनीमिया है, अब वो ब्लड कहीं से भी ले लेंगे, जब उनको दे रिक्वायर फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो कहीं से भी लेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल से ले लेंगे, बिकॉज दे नीड इट एंड दे विल लुक फॉर इट समवेयर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको मिले या नहीं मिलेगा कहीं दफे, प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको दे हैव अ वाइडर नेटवर्क, तो उनको शायद वहाँ पे मिल जाए, मे बी दे गेट इट एट अ मोर नेगोशिएबल प्राइसेस, पर द रिस्क्स आर आल्सो देयर। नहीं, पर ट्राइबल्स के लिए जो सरकार ने शुरू किया है और 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का ये सिकलिंग टेस्ट करने जा रहे हैं रैंडमली, हाँ, इसकी यूटिलिटी कहाँ तक आपको नजर आती? अब इसके लिए सिकलिंग के आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉब्लम्स, I know in RMRC Jabalpur we had a sickle cell anemia was very found, this thing. So they were supportive staff to tell them about through counseling कि when should they get themselves tested. नहीं, मतलब रैंडमली अब 10 करोड़ ट्राइबल्स हैं, हाँ, या 12 करोड़ ट्राइबल्स हैं और 5 करोड़ को आप टेस्टिंग करने जा रहे हैं, क्यों भाई? पहली चीज तो ये है कि अगर आप कर रहे हैं तो दे हैवंट डिसाइडेड अबाउट द पॉकेट्स से आपका भी गुजरात और the important thing is अगर आप ब्लड सैंपल ले रहे हैं तो there has to be a consent, and is the consent being given? A consent means is it really informed? इन्फॉर्म कर मतलब इट इज, आपको लगता है ट्राइबल करेगा ऐसा, उसको समझ मतलब वही वाली चीज है। इसमें ही HIV has actually helped in strengthening the ethical committees. In fact, HIV is one who built up stronger ethical committees all over, और उसकी वजह से ethics has become very important, क्योंकि they respect कि अगर किसी को है, जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई, पहले prostitutes बोलते थे, that means women who are in the profession of sex trade, but we are calling them sex workers,
because they are earning the money through sex, not maybe because of own choice, they had no other choice. So calling them by certain ways. जैसे drug users, abusers, but they are intravenous drug users, right? The infections, the possibility of transmission is much more. मणिपुर में तो आपको मालूम है जब बहुत ज्यादा था, इट्स अ वेरी हाई हॉटस्पॉट एरिया है. अच्छा, इसी तरह से जो हमारे वर्कर्स थे भिवंडी में, वी डिड अ स्टडी अमंग्स द भिवंडी पॉपुलेशन, जो 2-3 शिफ्ट्स पे काम कर रहे थे, और बिकॉज एटलीस्ट 2 शिफ्ट्स, बिकॉज दे वांटेड टू मेक मोर मनी टू सेंड इट बैक होम. दे हैड डिफिकल्ट टाइम्स. एक ही मतलब छोटे छोटे कमरे में करीब 8-10 लोग एक साथ रहते थे, शिफ्ट में काम कर रहे थे कि हम अब हम चले जाएंगे तो अब हमको जगह मिल जाए, बाकी आ जाएंगे, थिंग्स लाइक दैट. इन दोस टफ सिचुएशंस वो सेड कि कभी कभी तो हमको एंटरटेनमेंट चाहिए. इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट दे वर आल्सो बाइंग infection in a way. So, and this infection not only limited there, but it would be passed on to the back home when they go back home. Rural areas में भी पहुंचा. In certain areas in the north, UP and Bihar, high spots were identified जहाँ पे से migration बहुत ज़्यादा होता था. I'm talking about the early 90s. आप आज की भी बात करें, मेरे को हाँ, सीधा सीधा जवाब दीजिए. व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन रियली यू थिंक इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट in the success of all this thing? I'm asking, let me tell you one thing by asking. अभी नवंबर 2023 में सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया फॉर 3 years फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजीज. नवंबर 23 से लेके अब तक जो है करीब करीब आप मान के चलिए 3 साल होने वाले हैं. Okay. एंड द फंड वाज मेंट फॉर 3 years. Okay. 22,000 crore rupees had to be utilized in 3 years. And the first thing they got to do is to identify the number of इंडिविजुअल पीवीटीजी फैमिलीज. आज तक नंबरिंग नहीं हो पाई. 3 साल खत्म होने वाले हैं. आप क्या सोचते हैं कि एड्स में भी इसी तरह से जो है काम? जब हमारे कंट्री में अभी तक सेंसस ही नहीं हो पाया तो फिर ये वाली चीज नहीं. पीवीटीजी को तो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. अब मेरा गिरिडीह में काम है पीवीटीजी उस पे, बिरहोर पे. मेरे को कहते कि ठीक है भैया जी तुम 10 दिन में रिपोर्ट दे दो, तो मैं 10 दिन में देता. बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पीवीटीजी में काम किया हुआ है. 100 दिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट को देते, डायरेक्टर जनरल एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को देते कि भैया 5,000 करोड़ रुपए तुम्हें देते हैं और 1 महीने के अंदर जो है काउंटिंग करके दे दो. तो वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट को नहीं देंगे ना, क्योंकि कह तो रहा हूँ 3 साल का प्रोजेक्ट था, 3 साल खत्म हो रहे हैं. तो एड्स का भी क्या वही हाल तो नहीं हो रहा? नहीं. एड्स में somehow in 92 the National AIDS Research Institute was formed by ICMR, and just at the same time the National AIDS Control Organization was also formed. The control organization usually works through the ministries and through the state departments, through the health system, already existing health system. But here, one thing that came out was NACO and NARI, ICMR and NARI, they had collaborated. Okay, we would have to good kind of an equation to depend on each other, both research and in terms of control, so that we had an access to a large area covered, and at the same time they would get a feedback from us about the research being done. So that worked out pretty well. मिनिस्ट्री का कोई रोल नहीं था. ICMR and ICMR, the two institutes collaborated together independently. It worked very differently because that was just the time it happened, and that was the success of the program. So by 2000 and 2010, it was started that ART would be introduced. क्योंकि free HIV services थी, HIV testing was free in all the government. Privately जाके तो आप कोई भी करा सकते हैं payment, but this was what the government has supported. And Nari and we were doing their constant surveillance उनके, how the surveillance could be improved, how testing could be improved. That's it. Thank you मैम. It was the most enlightening podcast I would say. पर एक बात बहुत क्लियर हो गई. चीज जो है इसमें, एक चीज मैं जो बोलना चाहूंगी is about stigma. Stigma in India is still a very big issue, and this control has to happen. And this can come only through education program. Anthropologists definitely have a lot of role to play, and we should contribute in that. हम लोगों ने स्टिग्मा रिड्यूस करा था अपने HIV पॉपुलेशन में थ्रू योगा सेंटर्स. जो जिनको अभी HIV है, अभी आगे जाकर कुछ नहीं मिलने वाला, how they could improve their health in terms of quality of life through yoga. So some kind of interventions which are very indigenous should be also there to promote childhood.
मान के चलता हूँ कि सरकार वही होती है जो सड़क सड़क के काम करती है। सरकार अगर जो है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिसर्चर्स ऑनेस्ट पीपल के हाथ में दिया जाए, डेवलपमेंट बहुत आसान हो सकती है। डिजीज़ जो है उसको रिलेट करना फैमिली के साथ अगर आप जोड़ देते हैं और उसमें अपने आप स्टिग्मा ख़त्म हो जाता है। सरकार इतना छोटा सा काम कर सकती थी पर सरकार की प्रायोरिटी में नहीं आता। लेकिन बहुत अच्छा रहा आज। पर नारी और एनआईवी करना, नारी और नाको में कोलैबोरेशन से हम लोग का हाँ बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।